السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ساتھیہ اور میں ہوں نزہت نور۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کی تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں۔ ایران کا اعلیٰ سطحی وفد بات چیت کے بعد ایران چلا گیا۔ امریکہ اور ایران کا حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ پاکستان اور قطر کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ فری کین کے لیے مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات پورے ہفتے برگن اسٹاک میں جاری رہیں گے۔ آپ نے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے رابطہ لائن قائم کی گئی ہے۔ ایٹمی پروگرام پابندیوں سے متعلق ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ لبنان جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے ڈی کنفیکشن سینٹر قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ لبنان اور ثالث ممالک شامل ہوں گے۔ ثالث ممالک تعمیری ماحول میں مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ بات چیت کی مانیٹرنگ کے لیے قائم کمیٹی مذاکرات عمل کی نگرانی کرے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے رپورٹ دیں گے۔ چیف مذاکرات کار جوہری پروگرام پابندیوں کی نگرانی اور تنازع کے حل سے متعلق گروپس کی قیادت کریں گے۔ معاہدے پر مؤثر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ امریکی نائب صدر کا ایران سے مذاکرات میں مثبت پیش رفت کا اعتراف۔ جے ڈی وینس کی سمٹ ہال میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا تکنیکی ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات آئندہ دنوں تک جاری رہیں گے۔ ایران میں عالمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو واپس بلانے پر اتفاق کر لیا۔ IAEA کے انسپیکٹر ایران جائیں گے اور اس بات کی نگرانی کریں گے آیا ایران ابتدائی معاہدے پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ انسپیکٹرز اس ہفتے ایران جا سکتے ہیں۔ حتمی معاہدے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے بہت اچھے رہے۔ آب ہرمز کھلی رہی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں معاملات آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت پہلی اعلیٰ سطح کی کمیٹی کا اجلاس کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 60 روز کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہوا ہے۔ سیاسی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی کے قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ مزید تکنیکی سطح کے مذاکرات کے آغاز پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مسئلے کے پرامن اور دیرپا حل کے لیے پاکستان اپنا کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ ایران کی قیادت کو تعمیری روابط کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تاریخی عمل کو آگے بڑھانے میں تعاون کرنے والے دوست ممالک کے بھی مشکور ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کوششوں سے کامیابی ملی۔ ان کا عزم قابل تعریف ہے جس کے بغیر کوئی پیش رفت ممکن نہیں تھی۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی اور وزارت خارجہ کی کارکردگی بھی قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ مکمل، وطن واپس پہنچ گئے۔ زیورخ کے ہوائی اڈے پر سوئٹزرلینڈ کے اعلیٰ حکام اور پاکستان کے سفیر مرغوب سلیم بٹ نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطحی مذاکرات میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی مذاکرات میں شریک تھے۔ امریکہ ایران اعلیٰ سطحی مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ہوئے۔ ناظرین، ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کا ایرانی وفد بھی مسعود پزشکیان کے ساتھ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مسعود پزشکیان صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی صدر پاکستانی قیادت سے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی، علاقائی روابط کے فروغ پر بھی گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور ایران کی قیادت باہمی تعاون کے لیے مواقع پر غور کریں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد جاری سفارتی روابط پر تبادلہ خیال ہوگا۔ علاقائی اور بین الاقوامی اہم امور پر پاکستان اور ایران مشاورت کریں گے۔ دونوں ملک خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے عزم کا اعادہ کریں گے۔ اقتصادی تعاون کے سابقہ معاہدوں پر پیش رفت اور عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ بعد سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر بھی زیر غور آئیں گے۔ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لبنان جنگ کے خاتمے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ عباس عراقچی نے لکھا، ایران کے تیل پیٹروکیمیکل کی برآمدات پر پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ آب ہرمز کی ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے۔ ایران کے کچھ منجمد اثاثے بحال کر دیے گئے۔ ایران کی ترقی اور تعمیر نو کا بڑا منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ اقدامات پر عمل درآمد کے مراحل آئندہ مذاکرات سے مشروط ہیں۔
उधर अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के 5वें वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। अमजद हुसैन पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर भी हैं। अमजद हुसैन एडवोकेट बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हुए हैं। अमजद हुसैन दूसरी बार असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। स्पीकर इमरान नदीम ने अमजद हुसैन को बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान अपोजिशन लीडर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए हैं, जबकि 9 मुंतखब वज़ीर आला की तकरीब हल्फबरदारी की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बरतानवी ईवान में सियासी बहरान, 4 बरस में चौथे वज़ीर आज़म का इस्तीफे का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ओहदे से मुस्ताफ़ी। केयर स्टारमर ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अब मेरा वक्त ख़त्म हो चुका है। मैं बतौर लेबर पार्टी सरबराह ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। क़यादत के लिए नए इंतखाब मुकम्मल होने तक ओहदे पर बरकरार रहूँगा। तो नाज़रीन, इलामा ताहिर अशरफी समेत जय्यद उलमा कराम ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशें और इंतशार फैलाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। ताहम अवाम ने हमेशा मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके बयानिए को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि बास्करो और बैरूनी फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन कौम अपने मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद है। उलमा कराम ने कहा है कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान से वाबस्ता समझते हैं। कोई भी ताकत कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के दरमियान मोहब्बत और वाबस्तगी को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने पाकिस्तान की हालिया सिफारती कामयाबियों को सराहते हुए कहा है कि आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। उलमा ने अवाम पर जोर दिया है कि वो नफरत अंगेजी और मनफी प्रोपेगेंडे से दूर रहते हुए कौमी यकजहती और इस्तेहकाम को फरोग दें। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर बरहम। 4 माह की जंग के बायस ईरान में ज्यादा तब्दीली न आने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। ईरान की बहरिया और फिजाइया खत्म हो चुकी। लॉन्चिंग मिसाइल और ड्रोन्स की तैयारी की ईरानी सलाहियत भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। ईरान की आला क़यादत खत्म हो गई। आपने हुर्मुज़ खुल गई। तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। तो नाज़रीन, इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से यूएई, बहरीन और कुवैत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक खित्ते से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त, ताबना हुर्मत से बहरी जहाज़ों की मुकम्मल, आज़ाद और महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने की कोशिश पर बात होगी। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे, जहाँ खित्ते के ममालिक की मुश्तरका तरजीहात पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई। इमाराती मरबन खाम तेल $71.80 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 450 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,78,471 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हम सबको जाती अनाज से निकलकर कुछ करना होगा। सोच रहे थे हाथ मिलाने से मामलात बेहतर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले महमूद खान अचकजई ने ऐवान में खुद जाकर वज़ीर आज़म से हाथ मिलाया। संजीदगी से मुज़ाकरात का आगाज होना चाहिए। सियासत में किसी को भी माइनस नहीं किया जा सकता। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और दीगर साथियों को दोबारा सजाएं सुनाई गईं। बारहा कह चुके कि 9 मई की धूल को अब बिठा देना चाहिए। 4 साल में इंसानी हकूक की बेकदरी और कानून शिकनी की गई। ईरान अमरीका मुआहदे से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का नाम पूरी दुनिया में उभरा। पाकिस्तानी क़यादत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन अरकान के रोने धोने ख़त्म नहीं होते। ये अपने माजी की कारकर्दगी का जिक्र नहीं करते। जनूबी पंजाब का कार्ड दोबारा सामने लाया गया। सोशल मीडिया की झूठी बात ऐवान में आकर कर दी जाती है। इन्हें जनूबी पंजाब में बसें चलती नजर नहीं आती।
दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बजट में अवामी फलाह के लिए कोई नई चीज़ शामिल नहीं, जबकि बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों पर सूद की अदायगी में सर्फ हो रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 18,000 अरब रुपए के विफाकी बजट में आधे से ज्यादा रकम सूद में चली जाएगी, जिसका बराह रास्त बोझ पाकिस्तानी अवाम पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में एक अक़लियती रुकन ने भी सूद को अल्लाह ताला से जंग करार दिया, लेकिन उसके बावजूद कर्जों पर सूद की अदायगी का सिलसिला जारी है। सूद के खात्मे की बजाय इसमें मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने दावा किया, सूद की अदायगी के बाइस 540 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ता है और हुकूमत अवाम से वसूल किए गए टैक्सों के जरिए कर्जों का सूद अदा करती है। उन्होंने विफाकी हुकूमत की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे के ऐलान को नाकाफी करार देते हुए कहा कि महंगाई के तनासुब से ये इजाफा आवाम को कोई हकीकी रिलीफ फ्राहम नहीं कर सकेगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि EOBI में भी डंडी मारी जाती है, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों से बाकायदगी से कटौती की जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे की खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें मुआशरी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए सहर प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। मंसूबे के तहत सूबा भर में 5,365 खवातीन को घर बैठे जदीद वोकेशनल और फनी तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सहर प्रोग्राम में शामिल खवातीन और तरबियत मुकम्मल करने वाले शुरका के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब की खवातीन सूबे का कीमती सरमाया हैं और हुकूमत इन्हें काबिल कदर असासा बनाने के लिए अमली इकदामात कर रही है। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, हॉलैंड के मरकजी शहर दी हैग में हुसैनी मिशन नेदरलैंड के ज़ेरे तमाम इमाम बारगाह महफिल अली से ब्याज शोहदाए करबला 30वां सालाना ताज़िया अलम हजरत अब्बास अलमदार जुलजना का जुलूस बरामद किया गया। हॉलैंड से नुमाइंदा टीवी टुडे राजा फारूक हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस में हजारों अज़ादारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। जुलूस में पाकिस्तानी, इराकी, अफगानी, ईरानी और दीगर इस्लामी ममालिक की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि बच्चों और खवातीन की भी कसीर तादाद जुलूस के साथ थी। जुलूस के रास्ते में जगह जगह मासूम शहजादी सकीना और शहजादा अली असगर की याद में सबीलें लगाई गईं और न्याज़ें तकसीम की गईं। जुलूस से कबल बरतानिया से आए हुए मारूफ आलिम दीन आगा सैयद अब्बास आबिदी ने खिताब करते हुए कहा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानी दी। आपने इस्लाम को अपने खून का आखिरी कतरा देकर क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। मकामी शोरा ज़ाकिरीन में भी बाहजूर शोहदाए करबला नजराना अकीदत पेश किया। तमाम तर इंतजामी अमूर सैयद अजमत अब्बास शाह, सदर हुसैनी मिशन सैयद सुहेल हैदर, सैयद एजाज सैफी, हाजी काजिम हुसैन, सैयद तौसीफ हुसैन, सैयद ताहिर सलीम, राजा फारूक हैदर, सैयद वलायत हुसैन शाह ने एहसन तरीके से अंजाम दिए। जुल्म की इंतहा थी दुनिया के सामने और मुश्किल में थी मुश्किल कुशा के सामने। करबला हमें दर्स देता है और दुनिया को हमेशा दर्स देता रहेगा कि बातिल के सामने और मजलूम के हक के लिए हमेशा ताकत के बगैर मुकाबले के लिए सामने आता रहेगा। अल्लाह ताला उसको फतह और नुसरत से कामयाब शाद मुबारक पूरी दुनिया में हुसैन की मज़लूमियत और उनकी शहादत का जो है वो आज दिन मनाया जा रहा है। आज हमारे यहाँ ये जुलूस 32 साल से निकल रहा है और ये हर साल अजीम शान शौकत के साथ महफिल अली से जो हुसैनी मिशन का इंतज़ाम करती है अपनी मुतदा रस्ता से होता हुआ ये 2 से लेकर 5 बजे यहाँ पे मशहूर होता है। हमारा 30वां जुलूस है जो मुख्तलिफ अपने रूट से में चलता हुआ इंशाल्लाह 5 मील का फासला तय करेगा और पुलिस हमारे साथ है, इंतजामिया का तावन है हमारे साथ। जुलूस है यहाँ पे हॉलैंड में, तो इसमें शिरकत करने का मकसद ये था कि हम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में शहादत दे के हक की जो बात की थी उसको दुनिया के सामने लाने के लिए यहाँ जो हो रहा है हम उसकी तायीद करते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया जो है वो इमाम हुसैन के अफकार पे अमल करे। जब अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गहवारे में थे, बहुत छोटे से बच्चे थे, फरमाया कि ये हुसैन हिदायत का चराग है और नजात की कश्ती है, नजात का सफीना है।
यहाँ से ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि अगर क़यामत तक किसी को हिदायत चाहिए है तो उसे हुसैन से लेनी होगी, और नजात का भी कोई तलबगार है तो उसे भी हुसैन की तरफ माइल होना होगा। क्या तारीफ करूं हुसैन तेरी जात की, सबर भी रो पड़ा जब करबला की बात की। अली जमाले दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिल जां, अली बहारे चमन, अली अरूजे फसाहत, अली कमाले सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक की पहली किरण, अली वली से गरेदा ना हो खुदा के लिए, अली तो कुव्वते बाजू है मुस्तफा के लिए। नारा हैदरी। असग़र तेरे बगैर झूले को खाली देख के तुम याद आओगे, झूले को खाली देख के तुम याद आओगे। दुनिया भर की तरह यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस में भी शिया मुस्लिम कम्युनिटी यूनान के ज़ेर एहतमाम यौम अशूरा का मरकजी जुलूस निकाला गया। यूनान से नुमाइंदा टीवी टुडे अंसर इकबाल बसरा की रिपोर्ट के मुताबिक जुलूस में यूनान भर से शिया मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद के अलावा मुख्तलिफ दीनी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मरकजी जुलूस एथेंस के मरकज से शुरू हुआ और शहर की अहम शाहराहों से गुजरता हुआ यूनानी पार्लियामेंट की जानिब रवाना हुआ। इस दौरान या हुसैन के नारों से फिजा गूंजती रही, जबकि शुरका ने मुख्तलिफ झंडे और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर वाक़या करबला और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों से मुतालिक अबारात दर्ज थीं। जुलूस में शामिल सैकड़ों अज़ादार मातम करते हुए यूनानी पार्लियामेंट के सामने पहुंचे, जहां मुकर्ररीन ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि वाक़या करबला हक, इंसाफ, सब्र और इस्तकामत का अजीम दर्स देता है। जुलूस के अख्ताम पर शिया मुस्लिम कम्युनिटी यूनान के तर्जुमान सैयद अशीर हैदर ने तमाम शुरका, मुंतज़मीन और मुआवनीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात इंसानियत के लिए मशले राह हैं। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाही और तलीमी सरगर्मियाँ न सिर्फ कम्युनिटी की खिदमत का जरिया बन रही हैं बल्कि जनूबी अफ्रीका भर में पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस भी उजागर कर रही हैं। जनूबी अफ्रीका से नुमाइंदा टीवी टुडे सैयद इमरान हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक केप टाउन के एक मुकामी प्राइमरी स्कूल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती ऑफिशियल पासा केप टाउन यूनिट ने की है। तकरीब में तलबा, उसातिज़ा, वालिदैन और मुकामी कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि ऑफिशियल पासा यूनिट के सदर मलिक सईद अनवर खोखर और नायब सदर परवेज मियों खुसूसी मेहमानों के तौर पर शरीक हुए। तलबा ने सकाफती प्रोग्राम्स, रवायती रक्स और दीगर सरगर्मियों के जरिए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया, जबकि स्कूल के बच्चों ने थैंक यू पाकिस्तान के नारे भी लगाए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। अभी आपको बताएं, मंडी उस्मानवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से 1300 ग्राम चरस बरामद हुई है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुलजिम इलाके में नौजवान नस्ल को मनशियात की लत में मुब्तला करने में मुलविस था। पुलिस हुकाम के मुताबिक DPO कसूर की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। भक्कर में 7 मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। भक्कर से देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 मुहर्रमुल हराम के मौके पर आज निकाले जाने वाले जुलूस में अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जुलूस के दौरान अकीदत व एहतराम, नज़्म व ज़ब्त का एक खूबसूरत मंजर देखने में आया, जहाँ बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों ने भरपूर अंदाज में अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार किया। जुलूस में शरीक नन्हे बच्चों ने हाथों में अलम पाक उठा रखे थे।
और वो निहायत अकीदत व एहतराम के साथ जुलूस का हिस्सा बने रहे। इस मौके पर अंजुमन ताजिरान के अहदेदारान मेंबरान ने जुलूस में शिरकत की और अज़ादारों की खिदमत को अपनी सादत समझा। ये जुलूस तकरीबन 1 घंटे तक अपने मुकर्रर रास्तों पर पुरअमन अंदाज में जारी रहा और बाद अज़ां अपने इख्तितामी मकाम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दौरान अज़ादारों ने नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा करते हुए मुहर्रमुल हराम के अजीम पैगाम यानी सब्र, इसार, कुर्बानी, इंसानियत के दर्स को अमली तौर पर उजागर किया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए बखर पुलिस के अफसरान और एहलकारान मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां इंतहाई मुस्तैदी के साथ सर अंजाम दी। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजिरान राना मोहम्मद अशरफ खान ने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा, ये महीना, ये दिन तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। तो अहले बैत के लिए, जिनके लिए दुनिया बनी है, जो जन्नत के सरदार हैं, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन जन्नत के सरदार हैं और उनकी वालदा जो है वो औरतों की जन्नत की सरदार है। अगर अल्लाह को राजी करना, अल्लाह की मखलूक को राजी करना, तो आपके डेरा मुराद जमाली में लापता तालिब इल्म मोहम्मद अकबर शालवानी बुकटी की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने कुरान पाक उठाकर हुकूमत और आवाम से मदद की अपील की। अहले खाना का कहना है कि नौजवान की गुमशुदगी से पूरा खानदान शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। उन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सियालकोट में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें मुतादिद दुकानें सील और जुर्माने आयद किए गए। ऑपरेशन के दौरान दुकानों के बाहर सड़क पर सामान रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद दुकानें सील की गई हैं और जुर्माने भी आयद किए गए। हुकाम के मुताबिक बाजार के लिए मखसूस जगह मुख्तस की है, लेकिन सड़कों पर तजावुजात शहरियों की आमदोरफ्त में रुकावट बनती हैं। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फरूखाबाद के नवाही इलाके गांव मिलियांवाला में फायरिंग के अफसोसनाक वाक़े में 14 साला लड़का जाँ बहक जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया। लवाहिकीन के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब मुतासिरा नौजवान घर की छत पर मौजूद था। उसी दौरान मुबैना तौर पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में एक गोली रहमान अली को लगी, जिससे वो जान की बाजी हार गया, जबकि एक और नौजवान जख्मी भी हुआ। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। अटक में जिला इंतजामिया की जानिब से थैलेसीमिया से मुतासिरा बच्ची को 1 रोज के लिए एजाजी डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की हौसला अफजाई को समाजी जिम्मेदारी करार दिया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने थैलेसीमिया सेंटर का दौरा किया, जहाँ बच्चों में अद्वियात तकसीम की गई हैं और उनकी अयादत की। मरीज बच्चों और वालिदैन ने सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इंतजामिया की काविशों को खूब सराहा। जड़ावाला में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। मार्च शहर के मुख्तलिफ हसास रूट्स और इमाम बारगाहों के रास्तों से गुजरा। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान को यकीनी बनाने के अज़म का इयादा किया। हुकाम के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान मुकम्मल अलर्ट रहते हुए सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। खानेवाल में 6 मुहर्रमुल हराम का कदीमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हुआ, जिसके लिए जिला इंतजामिया ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजरता हुआ मुकर्ररा मुकामात पर नमाज और मजालिस के बाद इख्तिताम पजीर होगा। जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जुलूस से सैकड़ों पुलिस एहलकार, स्नाइपर्स और चेकिंग पॉइंट्स तैनात किए गए, जबकि अज़ादारों की सख्त चेकिंग के बाद जुलूस में शामिल किया जा रहा था। लियाकतपुर में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही है। डीपीओ ने मुख्तलिफ इमाम बारगाहों और रूट्स का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। डीपीओ इरफान समू ने मरकजी इमाम बारगाह लियाकतपुर और इमाम बारगाह हादी हुसैन शाहलाबाद का दौरा किया और जुलूसों के रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों और पुलिस नफरी की तैनाती का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस हुकाम को हिदायत की कि जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। शाहपुर चाकर में 6 मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में शहजादा अली असगर के झूले की शबी बरामद की गई, जिसे जुलूस की सूरत में दरशाह नजफ बारगाह तक पहुंचाया गया। कबल अज़ीम मजलिस आज़ा से उलमा ने खिताब भी किया। मज़ीद जानते हैं मुमताज अली मक्सी की इस रिपोर्ट में। शाहपुर चाकर में 6 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कमसन फर्जंद शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम के झूले की शबी बरामद की गई, जिसे अलमुर्ता कॉलोनी की बारगाह हुसैनी से खोकर मोहल्ले की
बारगाह दरे शाह नजफ तक लाया गया। इससे कबल मजलिस अज़ा से मौलाना अहमद रज़वी ने खिताब किया, जिसके बाद नोहा खानी और अज़ादारी के जरिए शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस के साथ JSO के स्काउट्स जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मौजूद थे। और अली असगर इस पूरे काफिले में, इमामों के काफिले में जो करबला का काफिला था, उसमें बिल्कुल छोटी उम्र के थे, 6 माह के थे, और 6 माह के उम्र में अपने वालिद की गोद में उन्होंने शहादत नोश फरमाई। और ये शहादत उन सब इंसानों के लिए एक सबक है कि शहादत की कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, बल्कि शहादत के लिए ईमान चाहिए, हौसला चाहिए। और ये हौसला यकीनन 6 माह का बच्चा था, लेकिन वो अपने हिसाब से एक मुकम्मल ज़हन रखता था, अक्ल रखता था। काफ़ी सालों से इसमें मजलिस अज़ा मुनक़्क़द होती है फर्स्ट मुहर्रम से। उस सिलसिले की आज 6ठी मजलिस थी, जिसमें उलमा किराम खिताब फरमाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के पोते अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में उसके मौजू पे फ़ज़ाइल मसाइब बयान किए जाते हैं। वो करबला के अंदर जनाब अली असगर को अपनी गोद के साथ साथ नन्हा सा एक झूला लेकर आई थी। उस झूले के अंदर जनाब अली असगर को रखा किया करती थी। तो बस उसी याद के अंदर हम जो है वो आज के दिन की मुनासिबत को मनाते हैं और इस दिन को मंसूब करते हैं जनाब अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और इसी दिन का वो मंजर पेश करने की कोशिश किया करते हैं कि जो मंजर करबला के अंदर मौजूद था। करबला के मैदान में शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम ने अपनी मासूमियत और मज़लूमियत के जरिए हक और बातिल के दरमियान फर्क को हमेशा के लिए वाज़े कर दिया। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत ये पैगाम देती है कि हक की राह में उम्र, ताकत या वसाइल नहीं, बल्कि इखलास, सब्र और कुर्बानी अहमियत रखती है। कैमरामैन सद्दाम अली के साथ मुमताज अली मक्सी, ब्यूरो चीफ TV टुडे, सांगड़। कसूर में मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूस और मजालिस के रूट्स पर सफाई और सहूलियात के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। रिपोर्ट करेंगे उसामा नदीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा की हदायत और MD सुथरा पंजाब डॉक्टर रिजवान अशरफ की जेर निगरानी जिला भर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में खसूसी इंतजाम जारी हैं। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा अमन कमेटी के मेंबरान ने सदात मंजर से विजिट करते हुए सफाई और रोड वॉशिंग को चेक किया। MD सुथरा पंजाब डॉक्टर रिजवान अशरफ की निगरानी में खुशबूदार स्प्रे के साथ रोड क्लियरिंग और रोड वॉशिंग का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में खास यौम अशूरा के दिन सफाई के माहौल की MD सुथरा पंजाब खुद निगरानी करेंगे। मरकजी जुलूस के रास्तों को इस मरतबा साफ रखा जाएगा। जगह जगह पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई जाएंगी। मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए सड़कों को पानी से धोया जाएगा और जुलूस के रास्तों में खुशबूदार स्प्रे किया जाएगा ताकि माहौल खुशगवार और खुशबूदार रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज के विजिट के दौरान साफ सुथरा माहौल दिखाया गया है, खसूसी तौर पर यौम अशूरा के दिन भी ऐसा ही माहौल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किए जाने वाले इंतजाम में सफाई सुथराई, रोड वॉशिंग, जुलूसों और मजालस के रूट्स की क्लियरिंग, खुशबूदार दोस्त माहौल के साथ शहरियों के लिए बेहतरीन सहूलत को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि अज़ादारों और शहरियों को साफ, महफूज और सहल माहौल मुयस्सर आ सके। उसामा नदीम, TV टुडे न्यूज, कसूर। लाड़काना में पेट्रोल की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न होने की शिकायत सामने आने पर शहरियों में तशवीश बढ़ गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद बाज़ पंप 302 रुपये और इजाफी रकम फी लीटर वसूल कर रहे हैं, जिससे अवाम पर माली बोझ बढ़ रहा है। मुतासरा सार्फिन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सरकारी निरखों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है, जबकि पेट्रोल पंप्स की फौरी चेकिंग और शफाफ तहकीकात जरूरी हैं। उधर कंडियारों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा जूनियर जुल्फिकार भुट्टो के ने मरहूम रफ़ीक खोसू के वर्सा से ताज़ियत की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मरहूम रफ़ीक खोसू एक बेहतरीन इंसान और बाकिरदार शख्सियत थे, उनकी जुदाई हमेशा याद रखी जाएगी। जूनियर जुल्फिकार भुट्टो ने मजीद कहा कि सिंध में एड्स जैसी बीमारी में इजाफा तशवीशनाक है, जिसकी रोकथाम के लिए आगाही मुहिमात और मेडिकल कैंप्स का इनेकाद नागुज़ीर है।
हैदराबाद में इकरारुल हसन की आमद और अवाम राज कन्वेंशन की तैयारियों के सिलसिले में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। हैदराबाद में मारूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन की आमद और अवाम राज कन्वेंशन की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में मुख्तलिफ इलाकों के ज़िम्मेदारान और कारकुनान ने शिरकत की और कन्वेंशन की तैयारियों पर तफसीली मुशावरत की गई। न्यू सैयदाबाद में शहीद बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश के मौका पर कुरान ख्वानी और दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुहेल की जानिब से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर कुरान ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के कारकुनान और मकामी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरगोदा डिवीजन में इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स एंड बॉयज टेबल टेनिस मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में सरगोदा डिवीजन के मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की है और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। गर्ल्स सिग्नल्स में जिला खुशाब की ईशा खानसा ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि सरगोदा की मरियम दूसरे नंबर पर रहीं। फीमेल कैटेगरी में ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी जिला खुशाब ने अपने नाम की, जबकि मियाँ वाली दूसरे नंबर पर रहा। बॉयज़ मुकाबलों में जिला भर के नुमान ने पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि डबल्स में भी भक्कर के नुमान और सादिक ने कामयाबी हासिल की। इख्तितामी तकरीब में डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजब ने खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफीज तकसीम की और बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।